Hello students, how are you? I hope you all are doing very well in your studies. आपके एग्ज़ाम्स भी हो गए होंगे. Third years you have finished with your exams, and I don't know about first years when are they coming to join us. So I'm eagerly waiting for the first years to come. और फर्स्ट ईयर्स जो है हमारे पॉलिटिकल थ्योरी पढ़ते हैं, और पॉलिटिकल थ्योरी में मैंने काफ़ी वर्क किया है. उस पर मेरे काफ़ी वीडियोस अपलोड हैं स्टूडेंट्स. So I feel that you will obviously benefit from my lectures and videos which I am uploading on a daily basis, not every day, but within a week or maximum within 15 days. And I'm very much thankful to all of you that you have given such a huge response to the lecture series, and you are also participating in it immensely. So let's begin with our topic, that is for today's discussion is equality. समानता के साथ मैं आपके साथ आज डिस्कशन शुरू करना चाहती हूँ. Before starting discussion, students, there are certain links within the description box जो आप प्लीज़ ध्यान से उसे ध्यान दीजिए. और अगर आप संपर्क करना चाहते हैं तो यू कैन कॉन्टैक्ट एंड स्टे कनेक्टेड विद इन दोज लिंक्स. एंड सेकेंडली, students, see, since the lecture which I am taking is not a very formal lecture, in the sense it's not a professional lecture, in the sense that all sort of nitty and gritties I'm not taking the lecture. I am taking the lecture with the sense that the important dimensions of the topics I'm trying to cover, and I'm also trying to see that if there is any important question which has been asked in previous years, and how you are going to attempt those questions. So my focus is going to remain on these issues rather than on just underlying the points and the traditional idea of teaching. So I want you to benefit from the platform which I have recently created due to pandemic, and because my students were not able to connect with me directly. So I'm very thankful really that there are responses which I'm getting, but still I am waiting for more and more responses from my students. You can write your queries there, you can put your queries, and it should be open. Your queries needs to be open, and please make the debate very friendly. बहुत ही friendly से हमें रखना है इस प्लेटफॉर्म को. और ये प्लेटफॉर्म वो प्लेटफॉर्म है जहां आपके साथ मैं जुड़ना चाहती हूं, और ये उम्मीद करती हूं कि आप भी मेरे साथ इस प्लेटफॉर्म में जुड़ेंगे. ठीक है, आप कोई भी तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप यूजीसी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप ग्रेजुएशन में एग्ज़ाम में की पढ़ाई कर रहे हैं, और यू आर गोइंग फॉर पोस्ट ग्रेजुएशन, एनी सॉर्ट ऑफ एग्ज़ाम्स or courses which are related with social science, that is the political science as per se. So you can always contact me. You can contact me through mails, you can contact me, there are other options through which you can contact me. So we can make this platform more sort of a deliberative platform rather than just a monotonous one where I'm speaking and students are I don't know, they are like hesitant to write their comments, or might be they are waiting that if one or few of their friends are going to interact, then only they will interact. So these things should not happen. So all of us are human beings, and we all have you can say mistakes in our life. So let's go beyond those mistakes and try to learn from those things. So let's begin students. Today our topic equality, समानता के साथ मैं डिस्कशन करना चाहती हूँ. जब हम समानता की बात करते हैं, समानता जो कॉन्सेप्ट है, समानता द आइडिया ऑफ इक्वालिटी की जब हम बात करते हैं, तो हमें लगता है कि
देयर वुड बी यूनिफॉर्मिटी इन सोसाइटी, और जो ट्रीटमेंट हमें मिल रहा है या जिस तरह से हमें व्यवहार किया जा रहा है, हमें जो संसाधन मिल रहे हैं, हमें जो अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है, हमें जो एजुकेशन मिल रहा है, हमें जो ट्रीटमेंट मिल रहा है, सभी चीज़ों में हमें समान तरीके से हमें उसका अनुभव मिले और हम उसको समान तरीके से जो है समझें, ये भी बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले जब हम इक्वालिटी की बात करते हैं, इक्वालिटी, तो हम इक्वालिटी में ये भी सोचते हैं कि इक्वालिटी ऑफ व्हाट, किस तरह की हम समानता की बात कर रहे हैं, किस तरह की समानता की हम बात कर रहे हैं। उस तरह की समानता की बात जो एक काफ़ी औपचारिक है, जैसा कि अरिस्टोटल ने कहा कि इक्वल शुड बी ट्रीटेड इक्वली एंड अनइक्वल शुड बी ट्रीटेड अनइक्वली, उन्होंने ये कहा। उन्होंने ये भी जस्टिफाई किया कि कुछ लोग रूल होने के लिए ही पैदा लेते हैं, कुछ लोग रूल्ड होने के लिए, some are born to rule and some are born to be ruled. That means he did justify inequality in certain sense. Okay, so not in totality, but obviously there was exclusion in his idea of political participation, in his idea of dialogue. अगर हम अरिस्टो की बात करते हैं, ग्रीक सिटी स्टेट्स की बात करते हैं, तो मैं यहाँ पे अरिस्टोटल की ही सिर्फ बात नहीं करना चाहूँगी, आपके साथ इक्वालिटी के कितने टाइप्स हैं, इक्वालिटी के क्या नए डायमेंशंस हैं, जैसे कॉम्प्लेक्स इक्वालिटी, इक्वालिटी ऑफ रिसोर्सेज, इक्वालिटी ऑफ वेलफेयर, कैपेबिलिटी अप्रोच ऑफ इक्वालिटी, लिबर्टी एंड इक्वालिटी के बीच में सामंजस्य है या दोनों एक दूसरे के विरोधाभास हैं। और फिर हम ये भी देखेंगे कि इक्वालिटी का जो एक नया आधार आया है, दैट इज़ द अफर्मेटिव एक्शन इन द सेंस सकारात्मक कार्रवाई का जो आधार आया है समानता में। रिसेंटली काफ़ी डिबेट्स हो रहे हैं, क्वेश्चंस भी आते हैं, इक्वालिटी से कनेक्ट करके ही अफर्मेटिव एक्शन से मतलब क्वेश्चन बनाए जाते हैं, पर स्टूडेंट्स को ये लगता है कि अफर्मेटिव एक्शन कुछ नया कॉन्सेप्ट है and should be treated as a distinct idea. So students, I want to make it clear here, सकारात्मक कार्रवाई हम कहें या हम पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन कहें या हम रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन कहें, ये सारी जो चीज़ें हैं इनका आधार एक ही है और ये सब सिनोनिमस हैं एक दूसरे के साथ। अफर्मेटिव एक्शन को समझने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि सबसे पहले हम इक्वालिटी के बेसिक आइडिया को समझें, इक्वालिटी का बेसिक बैकग्राउंड क्या है, कैसे इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट आया और इक्वालिटी जो है संविधान में किस तरह से हमें संविधान में क्या प्रावधान दिए गए हैं, इक्वालिटी को सुनिश्चित करने के लिए क्या प्रावधान दिए गए हैं कि जिससे इक्वालिटी जो है लोगों तक पहुँचे और इक्वालिटी लोगों तक पहुँचनी क्यों चाहिए। सबसे पहले बहुत इम्पॉर्टेंट है कि वाई डू वी नीड टू हैव इक्वल ट्रीटमेंट, वाई डू वी नीड टू हैव इक्वालिटी इन सोसाइटी। क्या अगर समानता नहीं होगी तो कहीं ना कहीं हमें कोई प्रॉब्लम होने वाली, कहीं ना कहीं हमारे साथ इल ट्रीटमेंट होने वाला है, कहीं ना कहीं हमारे साथ इनजस्टिस होने वाला है, हमारे साथ न्याय नहीं होगा, क्योंकि समानता और न्याय का एक बहुत बड़ा गहरा रिश्ता है। ठीक है, अगर आपके साथ समान ट्रीटमेंट नहीं हो रहा है तो हम कहेंगे हमारे साथ अन्याय हो रहा है। जितने भी वैल्यू लेडन कॉन्सेप्ट हैं, नॉर्मेटिव कॉन्सेप्ट है पॉलिटिकल थियरी में, दे आर वेरी मच कनेक्टेड टू ईच अदर। सो आर्टिकल 14 कहता है इक्वालिटी बिफोर लॉ, कानून के समक्ष समानता, उसमें ही इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ भी है, जिसमें से हम एक को हम पॉजिटिव कॉन्सेप्ट बोलते हैं और एक को हम नेगेटिव कॉन्सेप्ट बोलते हैं। तो क्या नेगेटिव कॉन्सेप्ट है इक्वालिटी के अंदर भी, क्या नेगेटिव डायमेंशन है, क्या पॉजिटिव डायमेंशन है इक्वालिटी के अंदर, पहली बात। दूसरी बात, जब हम ये बात करते हैं समानता की, हम बात करते हैं तो समानता हम बात करते हैं कि क्या समानता जो अब तक लोगों को मिल रही है, जो समान ट्रीटमेंट लोगों को मिल रहा है, क्या उनसे लोगों को फ़ायदा हुआ है? Have they really benefited from such you can say policies of the government that are made under this you can say platform of equality? इस इक्वालिटी के प्लेटफॉर्म में बनाए जाते हैं जितने पॉलिसीज़ प्रोग्राम्स हैं। और अगर हम इक्वलाइज़ करेंगे लोगों को तो हम किस तरह से करेंगे? इक्वल अगर हम करेंगे, इक्वल ट्रीटमेंट हम देंगे, और अगर हम इक्वालिटी को और आगे बढ़ाना चाहते हैं तो हम कैसे करेंगे?
कि आधार क्या होगा, इक्वालिटी का पैमाना क्या होगा, किस तरह से हम इक्वालिटी के क्या आधार होंगे जिससे हम इक्वालिटी को जस्टिफाई करेंगे कि हाँ ये इक्वल ट्रीटमेंट है। तो यही एक आइडिया है इक्वालिटी का जो इसे कंटेस्टेड बनाता है। और क्योंकि डिफरेंट स्कॉलर्स के डिफरेंट व्यूज़ हैं इक्वालिटी के लिए, और वो अपने व्यूज़ को जस्टिफाई करते हैं अपने आधार से। जैसे अलेक्सिस टॉकविल ने डेमोक्रेसी इन अमेरिका में बताया कि कैसे जो है इक्वालिटी इज़ इम्पॉर्टेंट एंड इक्वालिटी शुड बी गिवन इम्पॉर्टेंस। बट वो कहते हैं कि इक्वालिटी को अगर आप ज़्यादा इम्पॉर्टेंस देते हैं तो फिर लिबर्टी का हनन हो जाता है। तो हमें ये भी ध्यान रखना है कि अगर हम इक्वालिटी को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, अगर हम समानता को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, तो हम लिबर्टी को हैम्पर ना करें, हम लिबर्टी को नुकसान ना पहुंचाएं, इंडिविजुअल लिबर्टी को नुकसान ना पहुंचाएं। तो इसलिए इक्वालिटी एंड लिबर्टी जो है, ये जो इश्यूज़ हैं, ये कई बार जो है कुछ स्कॉलर्स मानते हैं कि दे आर कॉम्पैटिबल विथ ईच अदर, लिबर्टी एंड इक्वालिटी दे आर कॉम्पैटिबल विथ ईच अदर। और कुछ लोग मानते हैं कि लिबर्टी एंड इक्वालिटी दे आर नॉट कॉम्पैटिबल। जितने भी लिबर्टेरियंस हैं वो कहेंगे कि नहीं, ये कॉम्पैटिबल नहीं है, क्योंकि अगर हम लिबर्टी सुनिश्चित करेंगे तो हम समानता कर ही नहीं सकते ना। क्योंकि फिर जो है अगर हम लिबर्टी को सुनिश्चित करना चाहेंगे तो हम उस संदर्भ में कुछ लोगों को जो है अनइक्वल ट्रीट करेंगे, तो इस तरह से हम समान ट्रीटमेंट नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे ये बहुत ज़रूरी है कि समानता को समझने के लिए, क्योंकि समानता एक बहुत ब्रॉडर पर्सपेक्टिव है स्टूडेंट्स। पहली बात तो हम समानता को जो आज तक समझे हैं और समझते आए हैं वो एक औपचारिक समानता के संदर्भ में, एक प्रोसीजरल इक्वालिटी के संदर्भ में है कि समानता इन द आइज़ ऑफ लॉ, इक्वालिटी इन द आइज़ ऑफ लॉ। इक्वालिटी अगर हम आपको मतलब कानून के समक्ष अगर समान हमें ट्रीटमेंट किया जा रहा है तो हमें लगता है कि हमें समान ट्रीटमेंट मिल रहा है। पर कानून हमारे जो समानता है उसको किस तरह से ट्रीट करता है, और जो कानून ट्रीट करता है क्या वही समानता है, इस बात को भी हमें समझना पड़ेगा। क्योंकि इतने एक्सक्लूजन सोसाइटी में अभी भी हो रहे हैं, दलित्स का, आदिवासी का, महिलाओं का, ट्रांसजेंडर जो कम्युनिटीज़ हैं, एथनिक कम्युनिटीज़, बहुत सारे ऐसी कम्युनिटीज़ हैं जिनका जो है बहिष्करण हो रहा है। क्यों हो रहा है समाज में एक्सक्लूजन? वी डोंट वांट देम टू बी पार्ट एंड पार्सल ऑफ द सोसाइटी। हमने मेन स्ट्रीम का आधार नहीं मानते, तो कैसे हम समान फिर ट्रीट कर रहे हैं लोगों को? और जितने भी रिजर्वेशन पॉलिसी आज तक इम्प्लीमेंट हुई है जो इंडिया में, रिजर्वेशन पॉलिसी का मेन मोटिव था कि हर 10 साल बाद फिर उस पर हम रिव्यू करेंगे और अगर ज़रूरत नहीं पड़ेगी तो इट वोंट बी कैरिड फॉरवर्ड। बट स्टिल हम इक्वालिटी के नाम पे मेरिट और टैलेंट को जो है मार्जिनलाइज कर रहे हैं, हम लोगों को जो है अच्छी मेरिट से, अच्छी टैलेंट से डिप्राइव कर रहे हैं। अभी भी जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है वो बात करती है कि लोकल जो टीचर्स हैं उनको हम इम्पोर्टेंस देंगे एजुकेशन में और ये सारी चीज़ों में। ऑब्वियसली लोकल जो लोग हैं उनको इम्पोर्टेंस मिलना चाहिए सो दैट कि उनके साथ न्याय हो सके, उनके साथ समानता हो सके। तो समानता का विभिन्न पैमाना है स्टूडेंट्स। सो इक्वालिटी इज़ अ ब्रॉडर इन अ ब्रॉडर पर्सपेक्टिव। जब हम इवोल्यूशन समझेंगे तो मैं नेक्स्ट जो हमारा जो लेक्चर होगा उसमें मैं बात करूँगी एरिस्टोटल के क्यों कहते हैं कि इक्वल को इक्वल ट्रीट करो और अनइक्वल्स को अनइक्वल ट्रीट करो, क्योंकि एरिस्टोटल ने भी डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस की बात कही थी। फिर मैं हॉब्स और रूसो और टॉकविल की बात करूँगी, और फिर माइकल वॉल्स जो नए डायमेंशंस है इक्वालिटी के, एंड देन आई विल ट्राई टू रिलेट इट विद द आइडिया ऑफ affirmative action. So I hope you benefited my lecture in today's series. So please stay connected with me and do participate with whatever inputs I am able to provide to you. Each of us, I told you, we are not perfect. So students, ignore and try to give your suggestions so that I will improve more and more with you. And I need your help, I need your guidance to do well. So hope you take care of yourself and have a nice day. Okay, bye. Thank you.